you ever find yourself thinking a lot even about the smallest thing? You replay same thoughts again and again until your brain gets tired. Let me tell you, you're not alone. In this video, we are going to talk about think less and live more. What is overthinking? अगर हमें ये पूरा सिनेरियो जानना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ओवर थिंकिंग. ऑल दो वी आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट, तभी तो हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या ओवर थिंकिंग है. ओवर थिंकिंग इज दैट इट्स नॉट deep thinking, it's too much thinking. When we are replaying all the old memories again and again, all the worst experiences again and again, and exploring all the negative what ifs again and again, this is what is overthinking. ज़रूरत से ज़्यादा. Now, why we overthink? पता तो है कि गलत है, फिर क्यों कर रहे हैं? Because ये हमें पता नहीं है, by default unconsciously we do. Why? Because of fear. Fear of failing, fear of being judged, fear of not being good enough. And although हमें ऐसा भी लगता है that if we'll think on a particular thing, yeah, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देंगे तो इट विल गिव अस द सोल्यूशन. बट नो, इट विल नॉट एट ऑल गिव यू द सोल्यूशन. इन फैक्ट इट विल गिव यू द एंजाइटी, द confusion. Yeah, that's why in this video we're going to talk about how to deal with this overthinking. So the first thing is distract yourself. सुनने में लगेगा प्रॉब्लम से भागना है, बट नो, दिस इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. It's like you are choosing not to engage with the negative scenarios or the negative things that is going on in your brain. For example, if you are finding yourself that you are not in that good state where you are thinking negative about something, so it's better na ki giving a lot of time to that useless thing, you can do something else which is better than, far better than this. Like you can talk to your friends, you can watch a movie, you can go for a walk, or you can spend time with your family also. Means you have to, if you want to save your energy, if you want to save your mood, कि ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो, तो व्हाट यू कैन डू इज आप डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को, नेगेटिव से लेकर अपने आप को पॉजिटिव में आ जाओ. डोंट गिव सो मच इम्पॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर thing which is going on in your brain right now. Okay, so this is the first point, and the second is write down your feeling. ये बहुत अच्छा तरीका है. I really do it whenever I feel bad. If you are feeling very low at that particular instant, what you can do is, if you're not having anyone to talk, if you're not having any person जो आपको जज नहीं करेगा आपकी बातें सुन के, in that scenario what you can do is you can write all the things that is going on in your brain at that paper. Because what will that do, ये आपकी पूरे सिस्टम से वो जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितना भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको बहुत हेवी फील हो रहा था, वो सब वेंट आउट हो जाएगा. दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू बी परफेक्ट. डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ. बहुत बार क्या होता है ना, लोग बात नहीं बोलते हैं आपको गलत, बहुत बार आप अपने आप को गलत बोलते हो. बहुत बार इवन मैंने नोटिस किया ये पैटर्न. आई डोंट नो ये पैटर्न कहाँ से आया है हम लोगों के अंदर, बट वी ऑल डू दिस. मैंने बहुत बार देखा है, हम ऐसे बोलते हैं कि क्या कर रही है प्रतिभा, ऐसे कोई करता है क्या, ये हम अपने आप को डांट रहे हैं. बट ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने आप को, हम क्यों अपने आप को डांट रहे हैं? यहाँ पर क्या सबको साबित करने के लिए आए हैं कि हाँ जी भाई मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ? ऐसा भी होता है ना समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, नॉट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट इट्स लाइक देयर आर द पीपल हु आर देयर, जो आपको तभी पसंद करेंगे जब आपने कुछ अकम्पलिश किया है या कुछ बड़ा, कुछ बहुत अच्छा किया लाइफ में, ठीक है. बट एट लीस्ट यू शुड बी देयर एट योर डोर स्टेप फॉर यू. when everyone is criticizing you, at least you should be that one hand जो आपको शोल्डर पे टैप करके बोले कि इट्स ओके. तो you don't have to be perfect. Accept yourself as you are. हम किसी रेस में नहीं है, कहीं भाग नहीं रहे हैं, हमें ज़िंदगी जीनी है, सुकून से जिएंगे, तो हमें अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा. परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, दैट्स कम्प्लीटली ओके. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अ पीपल प्लेजर. ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है. बहुत बारी ना हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें मे बी दूसरों की नज़रों में अच्छा बना देंगी, है ना. लाइक हमने किसी को खुश करने के लिए कुछ कुक किया, और समथिंग एल्स वी हैव डन, या किसी ग्रुप कम्युनिकेशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन की साइड से बोला सो दैट पर्टिकुलर पर्सन बाद में आपको फेवर करे. तो वाई दिस इज़ गोइंग ऑन? हम यहाँ पर किसी को प्रूफ करने नहीं आए हैं. किसी की लाइफ में हमें, हर किसी की लाइफ में हम एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं बन सकते हैं. किसी ना किसी की लाइफ में हम विलन भी होंगे. इट्स बेटर टू बी अ पॉजिटिव कैरेक्टर और द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ इंस्टीड ऑफ
कि आपको हर एक इंसान की नज़र में अच्छा बनना है। दिस अगर इफ़ यू विल डू दिस ना, तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस दैट यू लूज योर सेल्फ, यू विल बिकम अ पीपल प्लेजर। कोई बोलेगा चलना है वहाँ पर, आपका मन नहीं होगा बट आप फिर भी जाओगे, क्योंकि आप किसी को दुख नहीं दे सकते हो। देखो, हमेशा किसी को ना बोलना या हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करो। इट्स जस्ट यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ। You have to understand it. Okay, so the next thing is gratitude. बहुत बार क्या होता है ना, हमारा हम ऐसे ही जब हम नेगेटिव सिनेरियोज में होते हैं, ये वाला मेथड बहुत अच्छा है। व्हेन वी आर इन दैट नेगेटिव सिचुएशन वेयर वी आर थिंकिंग ऑल द नेगेटिव सिनेरियोज, घर में किसी ने कुछ बोल दिया और पीपल आर जजिंग यू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस टाइम पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे पॉजिटिव थिंग्स को काउंट करें, हमारे ग्रैटिट्यूड को काउंट करें कि यार चल कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो अच्छा है मेरे साथ, एटलीस्ट ये तो है मेरे साथ। तो if we'll have this kind of mindset ना, it will really help us a lot. See, ये life है, ज़रूरी नहीं है सब आपके हिसाब से होगा, तो you have to be a little bit flexible. अपने आप को खुश रखना आपको खुद आना चाहिए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस, क्योंकि जब तक योर आपकी हैप्पीनेस किसी और पर है तो, और दे आर द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस, दे विल अल्टीमेटली यू नो दे आर हैविंग द की टू रेगुलेट यू, टू रेगुलेट योर मूड। सो इट्स बेटर टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू आर हैविंग, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जो हमारे पास हैं और शायद किसी के पास नहीं, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज हमें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे गेम लगती है। लाइक हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे हम कभी नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हैं, हम पॉजिटिव सिनेरियोज इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा पहली बात, आप पॉजिटिव सिनेरियोज इमेजिन करोगे, आपके फेस पे स्माइल आएगी, एंड स्माइल इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। और क्या होगा ना, स्माइल एंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों चीज़ें, दोनों इमोशंस एक साथ एक जगह पे रह ही नहीं सकते। तो अगर आप पॉजिटिव वॉटिव्स एक्सप्लोर करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव सिनेरियोज आपके ब्रेन से चले जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक क्या क्या ही मज़ा आएगा अगर ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी तो। या एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज stop controlling each and everything. Why I'm saying this, because ये चीज़ है, why we are so much in pain, क्योंकि हमें लगता है ना चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड हमारे हिसाब से चल भी नहीं सकती हैं, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल सकती हैं। वॉट वी हैव टू लर्न इज, ठीक है, इफ़ इट इज़ लाइक दिस इट्स ओके, चलने दो। व्हेन यू विल लेट गो ऑफ द थिंग्स ना, कि सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ से निकाल दो, एंड बी लाइक ओके, ये होगा तो भी मुझे एक्सेप्ट है, ये होगा तो भी मुझे एक्सेप्ट है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक आपको ये लगेगा ना कि यू कैन कंट्रोल और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब आपको ऐसा फील होगा, आपको बुरा लगेगा, यू विल बी लाइक इन नॉट दैट गुड मेंटल सिचुएशन। येस, सो यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑल द थिंग्स, सारे कंट्रोल्स अपने हाथ से निकाल दो, एंड से ठीक है, हाँ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें हो रही हैं तो हो रही हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्नॉलेज योर फीलिंग। अब इसका मतलब बहुत बारी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक्चुअली में बुरा फील होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ मुझे बुरा फील होना चाहिए, वहाँ पर भी अगर मैं बुरा फील करके यही बुरा फील करूँ कि यार मैं क्यों बुरा फील कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा फील करना चाहिए, तो इट इज़ नॉट लाइक दिस। हम ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर, बहुत बार हमारी फीलिंग्स हमें बस एक्नॉलेज करनी होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, जैसे हमने ये मेरे साथ है, ऐसा होता है कि मे बी समथिंग आई हैव प्लान्ड और वो नहीं हुआ, तो समटाइम्स थोड़ा सा बुरा तो लगता है, ठीक है, और वो भाई ग्रेजुअल भी है और लाइक वेरी ऑब्वियस इट इज़, तो लगना भी चाहिए। तो ना उसको आप स्टॉप मत करो, उसको सप्रेस मत करो, एक्नॉलेज करो, हाँ ठीक है इट्स ओके मुझे, लेकिन अब मैं इतना इस चीज़ से इतना अटैचमेंट नहीं लगाऊंगी, इतना एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। लेकिन वो भी आपको इतना मतलब उसकी ना फ्रिक्वेंसी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई तो बस सब पागल हो गए हैं उस चीज़ की वजह से, 2 या 3 दिन अपने स्पॉइल कर दिए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो आपको ये सीखना होगा, और ये सारी चीज़ें हम एकदम से नहीं सीख पाते हैं, बहुत ग्रेजुअली सीखते हैं, पर टाइम लगता है। और फिर आप जब ये सब चीज़ें सीख के उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे तो आप ऑब्जर्व भी कर पाओगे, यार अर्लियर आई यूज टू रिएक्ट लाइक दिस, बट अभी आई एम नॉट रिएक्टिंग इन दैट वे जो मैं पहले रिएक्ट करती थी। इट मीन्स यू हैव लर्न समथिंग। तो अगर अभी आप ये पूरी वीडियो देख भी लोगे तो प्लीज़, अगर आप सब कुछ भी नहीं ले पा रहे हो ना, प्लीज़ लर्न एनी वन थिंग टू डील विद दिस ओवर थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे ब्रेन के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है लर्न करना, बट इफ़ यू विल थिंक एंड यू विल कम विद द इंटेंशन कि एटलीस्ट हाँ ये एक पॉइंट है दैट आई कैन यूज़ इन माई लाइफ, ग्रेजुअली आपको लगेगा जब आप उसको यूज़ करोगे कि यार बहुत फ्रूटफुल है ये। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव कंटेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब सैड सॉन्ग सुन लेते हैं ना, तो मूड सैड नहीं भी होता तब भी सैड हो जाता है,
और या फिर नेगेटिव किसी का सुन लिया, है ना। पहली बात तो यार किसी के ना नेगेटिव दुखड़े सुनने हम के लिए हम थोड़ी ना बैठे हैं। हम क्या कोई मतलब ऐसा है क्या कि कोई आए अपना सारा गार्बेज हम पर ही उतार के यहाँ पे चला जाए कि लो भाई हमारा सारा कबाड़ा। एक्चुअली नेगेटिविटी इज लाइक गार्बेज। तो हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है नेगेटिव कंटेंट, म्यूजिक, मूवी, सीरीज, ज़्यादा मार धाड़ वाली मूवी, ये सारे ये क्राइम पेट्रोल वाले ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है हमें। और दूसरी बात, हमें किसी का दुखड़ा भी ज़्यादा नहीं सुनना है, ठीक है। और दो, अगर आप ज़्यादा सुन रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है मे बी आप किसी की हेल्प कर रहे हो, बट सम हाउ वो एक नेगेटिव कंटेंट है और उसकी एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर सकती है। लास्ट जो मुझे लगता है एक ब्रह्मास्त्र है, जो हम सब बहुत ही कम कर पाते हैं, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, एंड दैट इज लर्न टू फॉरगिव, अपने आप को भी और दूसरों को भी। जब आप दूसरों को फॉरगिव कर देते हो ना, तो आपके अंदर से सारे पेन चले जाते हैं। अभी सपोज आपका कोई आर्ग्यूमेंट किसी के साथ हो, अब जितनी भी बारी वो पर्सन आपसे इंटरेक्ट करेगा ना, तो वही नेगेटिव बात, जो मे बी आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो, वो नेगेटिव बात आपके ब्रेन में रिपीट करेगी। तो आपको क्या लगता है वो नेगेटिव चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है? वो आपको इम्पैक्ट कर रही है। आप उनको माफ़ कर दो तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में चलेंगी भी नहीं। कोई भी इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसकी मतलब आपके ब्रेन में ज़्यादा समय तक आप भी चलनी चाहिए इंस्टीड ऑफ कोई कुछ भी कोई और पर्सन नहीं। अगर ऐसा है तो समझ जाओ ये एक अलर्ट साइन है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। तो प्लीज़ लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ ऑल्सो एंड टू अदर ऑल्सो। क्योंकि अगर आपने औरों को माफ़ करना और खुद को माफ़ करना सीख लिया, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो गई है। सी ये सब कुछ है ना, ये सब कहीं ना कहीं एक एनर्जी का खेल है। जब तक अंदर से हमारी जितनी भी अगर स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जीज है वो सब बाहर नहीं जाएंगी, तब तक विल नॉट बी एबल टू डील विद दिस ओवर थिंकिंग। या उसके बाद आते हैं ओवर थिंकिंग की जो रूट कॉज है वो क्या है, पता है कोई? एनी आइडिया? सब थोड़ा रूट कॉज है हम अपने साथ हम बहुत हार्श हैं। वी आर नॉट काइंड विद आवर सेल्फ। सो विद दिस ओवर थिंकिंग ना, वी हैव टू बी काइंड विद आवर सेल्फ। या आपको नहीं लगता, आपने सुना नहीं अपने पेरेंट्स से कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप भी तो अच्छे हो? अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है ना? हमारे साथ तो अच्छा ही होगा। आपको नहीं लगता कि आप जितनी भी अमेजिंग चीज़ें हैं वो आप डिजर्व करते हो? यस, थिंक इन दिस वे ऑल्सो। ओके, एंड अनदर वन इज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर सेल्फ। जैसे हम औरों को रिस्पेक्ट करते हैं ना, बड़ों को, छोटों को, वैसे हमें भी खुद को रिस्पेक्ट करना होगा। अपने अपने प्लीज़ प्लीज़ नेवर एवर सी नेगेटिव थिंग अबाउट योर सेल्फ। शीशे के सामने भी अगर खड़े हो ना, और अगर मूड भी ऑफ है, तब भी आई रिकमेंड यू, तब भी रेडी होकर, अपने लिए रेडी होकर, क्योंकि रेडी होने से भी तो मूड बूस्ट होता है। अगर आपको खाना पसंद है तो यू कैन कुक समथिंग गुड फॉर यू। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आप, ये एक तरीका है आपका अपने लिए रिस्पेक्ट शो करने का। दुनिया के लिए तो हम सब करते हैं ना, अपने लिए क्या कर रहे हैं? वॉट मैटर्स द मोस्ट, है ना। तो दैट इज़ वॉट कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर सेल्फ। एंड अनदर वन इज, एक सेंटेंस है जो हमें बहुत सबको सीख लेना चाहिए, इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जितनी चीज़ें आपको कम इम्पैक्ट करेंगी ना, उतना आप कम हर्ट होगे, जितना आप कम हर्ट होगे उतना आपको कम ओवर थिंक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। तो इट्स ओके ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इट्स ओके। मैंने एक मेडिटेशन सेशन ज्वाइन किया था देयर, पहली क्लास होती है तो उसमें बताया गया, सर ने बताया कि अब से आप लोग इट्स, मतलब बहुत सारी बातें बताई थी, बट मुझे इट्स ओके वाली लाइन अच्छी लगी कि अब से आपको इट्स ओके को अपना मतलब एक कहते हैं ना, एक वो डायलॉग होता है कोई किसी का सिग्नेचर डायलॉग, वो बना लेना है। तो मैंने ऐसे इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। प्लीज़ यार ट्राई इट, ये मेरे तो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, आप भी करो, आपको भी मज़ा आएगा। इट्स ओके, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, एक्चुअली मैंने सारे पॉइंट्स ना लिख लिए थे, बहुत सारे थे। ओके, रीडिस्कवर जॉय इन स्मॉल थिंग्स। ये बिल्कुल हमारा ग्रैटिट्यूड से सिमिलर करता है। जैसे कि अगर आपने कोई डेडलाइन सेट करी अपने लिए, काम पूरा कर लिया यार, कितनी अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने काम टाइम पे कर लिया, है ना। कुछ खाना था तो कोई ले आया, कुछ अच्छा खाने का मन था, या फिर बात करनी थी किसी से, बात हो गई, है ना। बहुत बार ऐसा होता है हम कॉल करने वाले होते हैं, इतने में सामने से उसी पर्सन का कॉल आ जाए, या फिर आप कर लो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों में इफ़ यू विल फाइंड द हैप्पीनेस ना, तो लाइफ विल ऑटोमेटिकली गिव यू मोर हैप्पीनेस मल्टीप्लाई करके। Yes, and last but not the least, I will definitely say this, that if you want consistent happiness ना, तो आपको अपने आप को कंसिस्टेंटली बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा, बिकॉज कंसिस्टेंट हैप्पीनेस कम्स विथ कंसिस्टेंट सेल्फ लव। और सेल्फ लव यही होता है जो मैंने बताया आपको, खुद के लिए पॉजिटिव बोलना, अपने लिए कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद है, अपनी रिस्पेक्ट करना। दिस इज वॉट एक्चुअल सेल्फ लव इज। ओवर थिंकिंग डजेंट चेंज द फ्यूचर, इट स्टील्स योर पीस ऑफ योर प्रेजेंट। Let the life unfold one day at a time.
क्या ही ज़रूरत है अभी सारे सवालों के जवाब जानने की। समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत बार सोल्यूशन इस बात में होता है कि आप किसी पजल को ना अनसॉल्व ही छोड़ दो। याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, मैथ्स के क्वेश्चंस करते थे, बहुत टाइम करते थे, क्वेश्चन होता नहीं था, तो फिर हम उसको लीव कर देते थे, बट आफ्टर 1 और 2 डे या फिर 1 घंटे बाद भी उस क्वेश्चन को करते थे तो वो सॉल्व हो जाता था। दिस इज वॉट लाइफ इज, एंड दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो डील विद ऑल दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज. If this message helped you today, do like, subscribe, and share my video. And tell me in the comment what's that one thing you tend to overthink most. That's for today. Thank you.